you want to go ahead with a stream-based line towards your career, you need to stand by in terms of your learning. Until unless your learning is not on a higher side, no matter COVID is there, no matter tomorrow something else will come, you will not be able to find a job which you always dream about. नौकरी मिलना बहुत आसान है, बट जो नौकरी हम चाहते हैं उसको पाने के लिए we need to put our efforts like anything. And how that will happen? That will only and only happen basis your learning. आपने जो MBA में पढ़ा है, आपने जो BTech में पढ़ा है, वो आपके काम नहीं आएगा. Those are only basic set of layouts which provide you a basic foundation कि organization structure और skills काम कैसे करते हैं. But if you think your MBA or your BTech is sufficient enough to get you a desired job, my answer is no. How to go ahead with this? There are so many e-learning centers. There are so many online e-learning portals. There are lack of certifications which are available in the market. Whatever your interest area is, excuse me, whatever Yes. whatever your interest area is. Suppose if you want to become a software engineer, and that too using Python or a data language, so you need to do a additional certification towards this, which will limelight you in the corporate. Okay, this guy has done something extra in terms of finding a empower employment, and you will be standing out in the queue when it comes to freshers hiring. So additional certification करना बहुत जरूरी है along with your parallel studies what you guys are going into, because अगर आपके पास एक additional advantage होगा towards your learning, आपको बहुत जल्दी notice किया जाएगा. पहली चीज. दूसरी चीज, when it comes to a survival into an industry, you need to be very proficient, you need to be very active. There are no comfort jobs which are available in the market. 9 से 6 की नौकरियां नहीं है आज. Today a job demands 24/7 availability. So when I say availability, that doesn't mean you need to work 24/7. What that means is you need to you need to make yourself available towards any situation 24/7. Now I'll answer second question somebody asked, that what are the skills we all need to leverage when it comes to finding an employment. So basic skills when it comes to campus hiring are, first and the foremost is your communication, because that is something which is on a very higher side. If you are very low on communication, it is going to be very difficult in terms of finding a job. Communication doesn't mean that you only need to talk in English. What communication stands for is, if a question has been asked to you by someone, the way you respond with a very leverage enough of confidence, and what you are trying to say, if I am able to understand, that is the best communication you have. So you need to work on communication, you need to work on your grammar, you need to work on your pronunciation, you need to work on your vocabulary. So this is the first aspect that comes into picture when it comes to campus hiring. The second one is, somebody told me that there are people from psychology also. There are some of the students. So this answer is for them, and I think they will understand and relate it better. Today, companies are more focused when it comes to assessments. So when it comes to campus hiring, there are a lot of assessments which are happening. Manually also होते हैं, online also होते हैं. So दो जो major assessments हैं which are happening in the market, one is behavior and the second one is psychology. Technical, finance, वो सब बाद में आता है. Behavior and psychology is the demand today in the market. So how to judge? So how we as an HR are judging? We are judging your behavior towards your career. We have certain set of questions. The moment you answer, it will define your behavior. And basis that we will see, okay, he or she is a fit of an organization or not. The second one is psychological fitment. What does that mean? कि आपका दिमाग कैसे काम करता है? How broad your mindset is when it comes to career and organization. So we have a different set of questions there also. The moment you answer, we will be able to match whether you are a psychological fit for an organization or not. So technical के साथ साथ what companies are dealing today is
judging freshers on behavior, judging freshers on psychological fitment, judging freshers on skills, judging freshers on communication. So these are the four ladders of a campus hiring which we all are dealing as of date in the market. And these are the segments which will carry forward for 2, 3, 4 years, and the adjustment and the addition will keep on happening on a daily or yearly or quarterly basis. Now, third is what are the skills you need to work on in terms of getting employment. Suppose, for example, can you guys please go on mute? Third one is what skills are required in terms of finding a dream job. So there are thousands of skills which are available in the market. Suppose, for example, if somebody कोई HR में MBA कर रहा है और उसको एक proficient HR बनना है in coming 5 or 6 years. So what he or she can do? There are lack of certifications from Naukri, from LinkedIn, from SHRM, from Coursera. There are thousands and thousands of certifications which are available in the market into HR function. Because in HR also there is a segregation of functions like payroll, compensation, database management, payables, recruitment, talent acquisition, talent development, likewise. So किस function में आपको जाना है, you need to decide that first. फिर उस function को trail बना के आपको उस level के certifications करने हैं. For example, if you want to go into recruitment or hiring or talent acquisition, so LinkedIn offer more than 10,000 certifications into recruitment, which will design and define you कि recruitment क्या होता है, recruitment कैसे होता है, recruitment में क्या क्या कर सकते हैं, and what are the possible technologies which will impact recruitment in coming 5, 6 or 10 years. So basis those certifications, you will understand the recruitment better and better, and the moment you apply to any organization for a job in the respective domain, along with your CV, the moment they say that you have an additional certifications, I am 100% sure that you will get a job. So when it comes to skills, you need to define first. अगर आप ये बोलते हैं मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या बनना है? Because there are 10,000 skills in the market. You can't learn each and everything. आपको नॉलेज सबकी हो सकती है, बट आपको एक्सपर्टीज सिर्फ एक का ही होगा, एंड दैट इज योर करियर. So you need to define and pick up your expertise first. Then you need to start training yourself. This is not college responsibility to train you. This is your own responsibility to train yourself. Until unless you are not up to training yourself, college आपकी मदद कभी नहीं कर पाएगा. So defining a career is something which is completely in our hand. अभी कोविड की वजह से 2 महीना सारे घर पे काम कर रहे हैं, हम भी घर पे काम कर रहे हैं, बच्चे भी घर पे पढ़ाई कर रहे हैं. किसी ने ई लर्निंग सेंटर को एक्सप्लोर किया है? इन 2 महीनों में किसी ने कोई भी सर्टिफिकेशन करा है टुवर्ड्स देयर करियर? अगर नहीं किया है, दैट मीन्स यू हैव वेस्टेड दिस एंटायर 2 मंथ्स. आपने अपने एग्जाम्स की पढ़ाई कर ली, आप एग्जाम पास करके आपका 80%, 90%, 10 CGPA आ जाएगा, बट डू यू थिंक दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब? नो. बट अगर आपने इन 2 महीनों में एक भी सर्टिफिकेशन किया होगा रिस्पेक्टिव योर डोमेन, डू यू हैव अ पॉसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब? 100%. So that's a difference. That is a awareness you all need to create. You need not to have a dependency on college. College आपको बता सकता है, आपकी उंगली पकड़ के आपको पढ़ा नहीं सकता है. पढ़ना आपको पड़ेगा. कॉलेज आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दे सकता है, बट आप कॉलेज से ये एक्सपेक्ट करोगे कॉलेज आपकी जगह पे इंटरव्यू दे के आ जाए और जॉब दे दे, पॉसिबल नहीं है. वी ऑल नीड टू वर्क alone in terms of leveraging our learning, leveraging our understanding towards corporate market, and then able to find a job. इन 2 महीनों में जितने भी बच्चे कॉल पे हैं, आई वॉन्ट टू हियर कि इन 2 महीनों में व्हेन इट कम्स टू करियर और सब्जेक्टिव फाइंडिंग अ जॉब, किसने क्या किया है? किसी ने मार्केट एनालिसिस करी है? किसी ने डेटा रिसर्च करी है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ नौकरी जा रही है, कहाँ नौकरी आ रही है, कैसे मिलेगी नौकरी? हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट कि नौकरी ढूंढने के लिए क्या चाहिए? नौकरी ढूंढने के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है. इट्स नॉट मैंडेट, इट्स अ रिक्वायरमेंट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मैंडेट एंड अ रिक्वायरमेंट.
English is a requirement, not a mandate. But what are the mandates? Did you able to find out? Google किया है apart from watching movies, गाने, ई सीरीज, वेब सीरीज देखने के अलावा इन 2 महीनों में आप लोगों ने क्या किया है? When it is in terms of finding a job, क्या ढूंढा है? कितने ई लर्निंग सेंटर्स हैं? आप में से किसी ने कौन सा सर्टिफिकेशन किया है? किसी ने अपना कैरियर गोल डिफाइन किया है आने वाले 5 साल की हमें कहाँ जाना है? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सेइंग, कोई मुझसे पूछेगा हाँ सर क्या चाहिए, एज अ फ्रेशर मैं बोलूंगा हाँ सर जॉब दिला दो और क्या चाहिए, बट कौन सी जॉब दिला दो, किस सेगमेंट में जॉब दिला दो, क्या आप उस जॉब के काबिल हो? दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या 200, 250, 400 जितने भी लोग हैं कॉल पे, कोई भी एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके, और आई विल रिक्वेस्ट होस्ट टू अनम्यूट दैट पर्सन हु वांट टू टॉक टू मी कि सर 2 महीने में मैंने ये किया है। कोई भी एमबीए का बच्चा ऐसा है जिसने फाइनेंस, ऑडिट, रिक्रूटमेंट, ऑपरेशंस में कुछ डिटेल्ड एनालिसिस करी है? अगर आपने करी है तो मुझसे बात करो, मैं ही हायर कर लूंगा आपको। मेरे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट, आई विल ओनली कम हायर यू, बट यू नीड टू इम्प्रेस मी फर्स्ट। आपकी एमबीए की डिग्री और आपके सर्टिफिकेशन देख के मैं आपको जॉब कभी नहीं दूंगा। बट अगर आपने कोई एडिशनल लर्निंग करी है, ट्रस्ट मी, मैं आपको अभी इसी कॉल पे ऑफर दे दूंगा। बट क्या कोई किसी ने अपने आप को इस काबिल बनाया है? पीपल आर वेरी वरीड कि कोविड आ गया, कल को कुछ और आ जाएगा, मार्केट डाउन जा रही है, लोगों, अरे फॉरगेट अबाउट इट, दैट इज नॉट योर कंसर्न। आपका कंसर्न क्या है कि आपको सीखना है। कितने बच्चों ने इन 2 महीनों में क्या सीखा है, कोई मुझे बता सकता है? चिंता, बैठ सिटिंग एट होम एंड थिंकिंग कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा होगा, वैसा होगा, कहना बहुत आसान है, बट व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल, किसी ने कुछ सीखा है? कितने लोग हैं यहाँ पे फाइनेंस, एचआर और मार्केटिंग के? ट्रस्ट मी, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप में से किसी ने भी जवाब दे दिया, मैं आपके कॉलेज के ऑफिशियल मेल आईडी पे आपका ऑफर लेटर डाल दूंगा, अभी के अभी, विद इन 5 मिनट्स। है कोई ऐसा? नहीं है। रीजन भी, बिकॉज यू ऑल नीड टू फ्लो। हाँ, इसने ये बोल दिया, चलो इसी के पीछे लग लेते हैं। वाई नॉट यू आर स्टैंडिंग आउट योर सेल्फ फ्रॉम द क्यू? कोई क्या बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हमने क्या किया, हमने क्या सीखा। अगर हमारी लर्निंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड फंक्शन इतनी स्ट्रांग है, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कैसी है, कोविड है, क्या है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, अप्लाई फॉर अ जॉब, गिव इंटरव्यू एंड गेट अ जॉब। नथिंग लाइक दैट कि पीपल आर नॉट फाइंडिंग अ जॉब। जो काबिल है उनके लिए नौकरी कल भी थी, उनके लिए आज भी है, और उनके लिए हमेशा रहेगी। नौकरी मिलना सिर्फ उन लोगों को मुश्किल होता है जो फोकस नहीं कर पाते हैं और सिर्फ पीछे चलने की कोशिश करते हैं, who don't want to come up front and step forward। मुश्किल उनके लिए आती है जिनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, जो सिर्फ मार्केट एनालिसिस, डेटा एनालिसिस में घुसे रहते हैं, उनको कभी भी दिक्कत नहीं आती। दे नेवर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्पाइट ऑफ दे डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। उसके बाद भी उनको जॉब मिल जाएगी, बिकॉज इंग्लिश सिखाई जा सकती है, स्किल नहीं सिखाई जा सकती। तो अभी भी 15-20 दिन है, अभी भी यू ऑल हैव एम्पल टाइम, एंड ट्रस्ट मी गाइस, यूटिलाइज इट, बिकॉज मार्केट कंडीशंस आर टफ एंड दैट्स अ फैक्ट। अगर अभी नहीं चालू करोगे, दिक्कत आएगी, मुश्किल आएगी, सफर आपको करना पड़ेगा। आपका कॉलेज, आपके कॉलेज के डायरेक्टर, आपके टीचर्स, दे विल नॉट सफर, यू विल सफर। So start learning, start enhancing, and if you want कि कैसे सीखना है, there are so many e-learning portals। Coursera है, LinkedIn Linda है। LinkedIn का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है which is called as LinkedIn e-learning। उसको डाउनलोड करो, फोन में रजिस्टर करो अपने आप को, देखो कौन से फ्री कोर्सेज हैं, कौन से पेड कोर्सेज हैं। गूगल के इतने सारे कोर्सेज हैं ऑन डिजिटल मार्केटिंग, एचआर, फिनेंस, उनके कोर्सेज करो। Don't go to training institutes and do the courses. Don't do that. If you want to do e-learning and enhance, you need to use web portals. You need to do e-learnings, because e-learnings are global recognized certificates।
आप कोई भी लर्निंग करते हो उसके साथ आपको एक लाइसेंस नंबर मिलता है विच यू कैन शोकेस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो लाइसेंस नंबर आप अपने सीवी में डाल सकते हो, जो लाइसेंस नंबर आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे डाल सकते हो, सो दैट पीपल विल व्यू कि अच्छा ये बच्चा इस कॉलेज का है, इसने इतने सर्टिफिकेट करे हैं, he or she is a good guy, why not to connect with him? So you need to showcase that, first thing. Second thing, when it comes to social platforms, see, today if you want to get a job, the easiest way in terms of getting a job is social media. Social media can get you a job also, and social media can fire you also. How? The moment you start showcasing your learning and skills on social platforms like Facebook, like LinkedIn. So Facebook I'll not honestly put into, but yeah, of course LinkedIn is one of the best professional sites what we have today. You need to use that LinkedIn in a broader way. You need to connect with people. Connecting people on LinkedIn is something which is very easy. Suppose तुमको Capgemini के HR से connect करना है, find a HR name from LinkedIn and send a friend request. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपकी request ऐड नहीं करेगा, that's okay. Capgemini में 10,000 HR है. Keep on adding people. The moment someone add, start talking to them over LinkedIn. Ki, sir, I am a fresher, I have done this, I have done. Don't ask for a job. Ask for an opportunity towards learning that will showcase your zeal and passion towards your career. And then that is what something which is very impressive when it comes to talking to an HR. जॉब नहीं मांगनी है, एडवाइस मांगनी है कि जॉब के काबिल हम कैसे बने. The moment you put this advice towards any HR, there will be a spark in your communication, and HR will understand the zeal and passion in your mind, and you never know, you will get an opportunity. Because we as a job seeker, we always need to try. There are no certain standards कि हाँ एप्टीट्यूड होगा, फिर जीडी होगा, फिर पीआई होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन पे एचआर से कनेक्ट करके ही जॉब मिल जाती है. Because we are moving from this myth of having the education segmentation. बहुत सारी कंपनी है जो आज डिग्री नहीं देखती है जॉब देने के लिए. आने वाले टाइम पे बहुत सारी कंपनी ऐसी और होंगी who will transform themselves on this, जिनको डिग्री की जरूरत नहीं है. They want a creative mind in the market. They want a passion, they want a zeal in a person's eye, so that कोई भी काम असाइन करा जाए वो immediately कर दे. So you need to get out of that dilemma, not immediately, but yes, slowly down the line. We all need to, modulate and populate ourselves in that arena wherein we all will be carrying a creative mind in terms of any assignment towards any work provided by an organization within a given TAT to deliver. So these are my answers for all the questions, all the 3 questions which someone has asked me. Anything else you want to ask me? I'd love to answer. Anybody? Yes? So from the student panel, we are not working in a structured way, but we were working in a leadership quality. Like at being a social work student, we were working with different NGOs, and in the present situation, we were just performing, and we were making campaigns, and we were doing our whichever field we are. And at present, we were working on the resume making and different way that will let us build our career. Okay. So tell me one thing. Tell me one thing. From a student panel, tell me one thing. When you say resume making, are you guys making video CVs? No, sir. Then what resume making you are doing? Are you making digital? Are you making digital CVs? See, understand why I am asking is because the moment you start doing this will help you very broader way. आज की डेट में 2 पन्ने का सीवी कोई नहीं देखता है, लेकिन 2 मिनट का वीडियो सब देख लेते हैं. So that is the differentiation when it comes to understanding. अगर आज आप बच्चों का वीडियो, so do a pilot run. I am not saying कि 2000 बच्चों का वीडियो सीवी बनाओ, बट एटलीस्ट आपकी बेंच में जो 10 बहुत ही क्रिएटिव बच्चे हैं उनका 2-2 मिनट का वीडियो सीवी बनाओ, एंड दैट फॉरवर्ड इट टू द कम्युनिटी
and see the response, because until and unless you don't get a response you will never get an idea कि correction कहाँ करना है. मुझे भेज दो 2 बच्चों का वीडियो सीवी बना के, forward it to me, let me have a look and let me provide my feedback कि what corrections are required in this particular video. Right, sir. Thank you. Yes. Anybody else, please? Is there any question in chat box? बंसीधर जी, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ. हेलो. हाँ सर, पूछिए. मैंने कहीं सुना है ऐसा कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर आजकल एचआर ज्यादा ध्यान देते हैं. तो एचआर ये इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों का कैसे टेस्ट करते हैं या अपने कैंडिडेट्स का कैसे टेस्ट करते हैं, जज कैसे करते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ. सर ये पहली बात तो ह्यूमन और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज होती नहीं है व्हेन इट कम्स टू एन इंटरव्यू. फर्स्ट थिंग, आपने जहां भी सुना होगा, आई डोंट डाउट कि आपने कहीं सुना होगा, बट बीइंग इनटू एचआर इंडस्ट्री फॉर 12 इयर्स नाउ, ऐसा कुछ भी नहीं होता. ये सब कहानियां हैं. एचआर जब एक इंटरव्यू लेने आता है तो वो पहले से ही ऑफिस से निकलने से पहले डिसाइड करके आता है कि उसे चाहिए क्या. अगर मैं आज आपके कॉलेज आता हूँ, मुझे 40 बच्चे डिसाइड हायर करने हैं, तो मेरे माइंड में ऑलरेडी मेकअप है कि मुझे कौन से बच्चे चाहिए, मुझे सिर्फ वो ढूंढना होता है. सो व्हेन इट कम्स टू इमोशनल इंटेलिजेंस, देयर इज नो इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाट वी लुक फॉर. व्हाट वी लुक फॉर इज हाउ अ पर्सन विल हैंडल स्ट्रेस मैनेजमेंट. So there is a differentiation between emotional intelligence and stress management. कंपनी में इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं होता है. that will defined in marketing and sales, not in HR. But when it comes to stress management, yes, it is highly required because all the jobs today are highly stressful. And we always, हमें बोला जाता है, and हम अपनी टीम को भी यही बोलते हैं, you always need to find a person, a male or a female, irrespective, who will be able to work in stressful conditions. Although organization में हमेशा stress नहीं रहता है, खेलकूद होता है, गाना बजाना होता है, एक बहुत ही healthy atmosphere provide कराया जाता है each and every employees को as of date. But still, when it comes to work, it is highly stressful, and we always need to find out someone from the market or a pool of people कि ऐसे कौन से बच्चे हैं who will be able to handle stress very easily. बिकॉज जो बच्चे स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाते वो अपना करियर आगे खराब कर लेते. जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है. आप ठीक है, थैंक यू. या वेलकम. एनीवन एल्स हु इज हैविंग एनी सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर मी? स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, स्ट्रेस मैनेजमेंट शेयर करने की टेक्निक. Sorry, I'm not able to hear you. Your voice is breaking massively. ये स्ट्रेस मैनेज करने की भी तो कोई टेक्निक होती है, इसके असेसमेंट का भी कोई तरीका? सर स्ट्रेस मैनेज करने की तरकीब बिल्कुल होती है. अगर मुझे कोई काम असाइन किया गया है और मुझे पता है ये काम डिफिकल्ट है, बट स्टिल आई एम एबल टू फाइंड अ वे इन बिटवीन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट वर्क डन वेरी क्विकली, दैट इज द ओनली वे ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस. आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आके आपको काम डिफाइन किया गया है, जैसे काम डिफाइन किया जाता है वो एक स्ट्रेस है. आपको उसको कितनी जल्दी खत्म करके इन अ इफेक्टिव वे, दैट इज व्हाट स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट. कोई इसकी पढ़ाई नहीं है सर, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. अगर हमें घर पे मम्मी पापा जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इन दिस लॉकडाउन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टेइंग अलोन, जो अपनी फैमिली से दूर हैं, जो अपने दोस्तों से दूर हैं, जो अपने घर परिवार से दूर हैं. सुबह उठते हैं, उनको स्ट्रेस होता है कि भाई अब चाय बनानी है, अब अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, बिकॉज कोई और है नहीं, बट फिर भी इंसान बनाता है. सो यू ऑलवेज हैव टू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. या तो हंसते हंसते कर लो या रोते रोते कर लो, करना तो आपको पड़ेगा. अगर आप रोते रोते करोगे सो दैट कंडीशन इज स्ट्रेसफुल, अगर आप हंसते हंसते करोगे सो दैट कंडीशन इज जॉयफुल फॉर यू. एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस विच हैपेंस इन कॉर्पोरेट, एज सिंपल एज दैट. Got it? ठीक है.
AI 100% एग्री, एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम भी काम कर रहे हैं वो सारे हमारे लेवल पे और आपके लेवल पे ये बात तो बिल्कुल सही है। ओके और ये बात बिल्कुल है, बट फॉर द स्टूडेंट के लिए अगर आप ये स्किल बता रहे हैं तो हम आपको सिर्फ इतना वो करना चाहते हैं कि स्टूडेंट एग्री है 12 घंटे काम करने के लिए, वो काम जल्दी जल्दी करने के लिए, लेकिन कुछ तो वो टिप्स होगी, कोई तो वो चीज होगी जो कि उनको मिसिंग है, वो मिसिंग कंटेंट होता क्या है, अगर यहाँ पे वो हो जाए तो कोई स्किल्स उसकी अभी बढ़ जाएंगे और उनमें शायद वो बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक आ जाएगी, क्वालिटी आएगी। और जब सर तक देखिए, हम वर्ड, सर एक चीज तो मेरी जो क्वेरी है वो सिर्फ इतनी है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच के जो रिलेशन है वो ठीक है आपके मैनेजमेंट, लेकिन ये वर्ड के साथ और इन सारी चीजों के साथ वो एक्चुअली क्या चीजें हैं, थोड़ा सा और अगर इसको आप एलोबरेट कर देंगे, आई थिंक ठीक है, बेटर फॉर। गॉट इट। अब देखिए, ये जो देखिए जो ये गैप है एकेडमिक और कॉर्पोरेट का, ये आज से नहीं, ये बहुत टाइम से है और ये आगे भी रहेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो डिमांड और सप्लाई है इन बिटवीन एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट, दैट वेरीज अ वेरी ब्रॉडर वे, और वो गैप कभी मिटिगेट नहीं हो पाएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू कि एक बच्चा अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स जो बच्चे को वो कॉन्फिडेंस दिलाए कि नहीं बाबा आई विल डू इट। सो एक बात बताइए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कल आप एक हफ्ते बाद आपकी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस आती है कैंपस हायरिंग के लिए। आप अपने बच्चों को क्या बोलते हैं करने के लिए? आप ये बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन पे काम करिए, इन्फोसिस के बारे में थोड़ा जान लीजिए, दैट्स ऑल, अपने आप को प्रिपेयर करिए। बट लेकिन क्या आपने कभी ये बच्चों को बोला है कि इन्फोसिस की हिस्ट्री पढ़िए कि 3 साल में उन्होंने कितने फ्रेशर हायर किए हैं और वो फ्रेशर आज किस लेवल पे हैं? तो बच्चे बोलेंगे आई डोंट हैव देयर कॉन्टैक्ट्स, मैं उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करूंगा? यू विल गेट देयर प्रोफाइल्स ऑन लिंक्डइन, जहाँ पे कैरियर जर्नी हर इंसान की, अगर आप मेरा लिंक्डइन भी खोलेंगे तो मेरी कैरियर जर्नी पूरी डिफाइन होगी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज मैं कहाँ हूँ। इन्फोसिस एक साल में कितनी फ्रेशर की हायरिंग करता है? किस तरीके की जॉब्स अपार्ट फ्रॉम जिसपे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसके अलावा और कितनी ऐसी जॉब्स हैं जो इन्फोसिस एज अ फ्रेशर हायर करता है? नौकरी पे जाइए, लिंक्डइन पे जाइए, जॉब के कॉलम में फ्रेशर टैब दबाइए, आपको कंपनी का नाम डालिए इन्फोसिस, पूरे साल की हायरिंग आ जाएगी। क्या किसी बच्चे ने कभी उस टैब पे जाके जेडी को पढ़ा है और समझा है और कभी अपने आप को रिलेट किया है? जब तक बच्चे ये नहीं करेंगे, वो कॉन्फिडेंस बच्चों में गेन नहीं होगा। और द डे दे विल स्टार्ट डूइंग दैट, they will be having ample confidence enough to deliver, to answer, to communicate। ये एक डिफरेंस है जो कोई नहीं सिखाता। सवाल पूछना इज ओके, आंसर सबके पास है, बट कोई बोलना नहीं चाहता, दैट इज अ डिफरेंस। एंड ये समझाना बच्चों को अपने में एक बहुत डिफरेंट टास्क है। आई अंडरस्टैंड, मैं कैंपस हायरिंग पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, आई नो इशू क्या है। They don't want to do it because what they feel it's a waste of time, but it's not a waste of time. The moment you start doing it, it will help you only। आपके कॉलेज को हेल्प नहीं करेगा, आपको हेल्प करेगा। So start doing that। कभी भी कोई कंपनी कैंपस के लिए आती है, कभी भी कोई जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, you always need to do a deep down research कि ये कंपनी क्या है। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि इन्फोसिस बहुत बड़ी है, टीसीएस बहुत बड़ी है, फेसबुक बहुत बड़ी है, ये दुनिया जानती है। आप इस कंपनी के बारे में कितना अलग जानते हो, दैट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैटर्स अ लॉट, एंड दैट विल गेन एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। दैट इज व्हाट आर स्किल डेवलपमेंट इज एट द टाइम ऑफ कैंपस हायरिंग, दैट यू ऑल नीड टू डू। दिस इज कॉल्ड मार्केट रिसर्च, डेटा, पब्लिक मार्केट रेशियो, आप इसको कुछ भी नाम दे लो, बट फॉर मी इट्स अ बेसिक लेआउट, इट्स अ बेसिक फाउंडेशन। आप कोई भी खाना कब खाते हो? जब आपको पता है ना ये खाना अच्छा होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई लव दाल राइस, तो मुझे पता है ना दाल राइस अच्छा है, दाल राइस से पेट भरेगा, दाल राइस का प्रोटीन लेवल क्या है, दाल राइस कितना अमाउंट में खाना चाहिए कि मेरी नीड एक दिन की हो जाए। जब आप खाना खाते हो, जब आप मूवी देखते हो, जब आप पिक्चर देखने जाते हो, जब आप घूमने जाते हो, आप सब पता करके जाते हो। लेकिन जब कैरियर की बात आती है तो आप दूसरे पे डिपेंडेंट होते हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक बेसिक डिफरेंस है। आपकी दाल रोटी, आपकी मूवी, आपका खाना, सब कुछ आपके कैरियर से रिलेटेड है।
तो आपको प्रायोरिटी सबसे पहले कहाँ देनी है? अपने कैरियर पे। अगर आपका कैरियर ठीक चलेगा तो सब ठीक चलेगा। Shubham ji, first of all, Yes. nice to hear you, and we need your active support further also. Secondly, when an HR comes to the campus, as you said, that you are coming for 10 years, तो आपको जब किसी बच्चे को इंटरव्यू करते हैं तो उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को देखते हैं लेने के लिए, या आप नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को देखते हैं उसको रिजेक्ट करने के लिए? व्हाट इज द मेजर इंपॉर्टेंस इन दीज टू एट्रीब्यूट्स? देखिए सर, तीन चीजें हैं। I mean, this is the first question. I got it. Secondly, I also wish to say some topic, some direction, so that our students are able to differentiate between the jobs and the careers. That is also very important. So these are the okay. So first thing, when you talk about rejection and campus hiring, so first thing what I always consider is there are no rejections. Rejection जैसा कुछ नहीं होता है। Rejection, what I am saying is कि when a HR come to your premises and reject someone, so there are two reasons. So there is no positive and negative. There are strengths and there is opportunity. When somebody is saying that this is not good, that's an opportunity area for you to develop that. That's not a negative aspect. So पहले तो अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दो कि पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा कुछ होता है। एक होता है स्ट्रेंथ जो होती है मजबूती, और एक होता है अपॉर्चुनिटी एरिया जहाँ पे आपको काम करना है अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए। लेट मी पुट इट दिस वे। सेकेंड थिंग, जब भी HR आपके कॉलेज आता है और किसी भी बच्चे को रिजेक्ट करता है, दैट डजंट मीन कि यू डोंट डिजर्व। व्हाट दैट मीन्स इज एक्स्ट्रा एंड एडिशनल पॉलिशिंग इज रिक्वायर्ड to come to a level wherein you stand by and say, I am confident enough to get a job. Third thing, and the foremost important thing, जब तक आप रिजेक्शन हैंडल करना नहीं सीखोगे, आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। रिजेक्शन इज ऑलवेज अ विंडो टू लर्न मोर, टू ऐड मोर, टू लेवरेज मोर फॉर योरसेल्फ। जितना जरूरी सक्सेस है उससे 10 गुना जरूरी रिजेक्शंस हैं। बिकॉज जब तक रिजेक्शंस नहीं मिलेंगी आप सीखोगे नहीं। कोई नहीं सीखता, मैं भी नहीं सीखता। जब मुझे पहली नौकरी मिली थी मैंने 18 इंटरव्यू दिए थे। एक 5000 की नौकरी के लिए आई हैव गिवन 18 इंटरव्यूज, तब जाके एक 5000 की नौकरी मिली थी। आज 5000 की नौकरी से लेकर 2 लाख 3 लाख रुपए महीने तक की नौकरी, बहुत 11 साल लग गए, बहुत मेहनत लग गई। बीच बीच में रिजेक्शंस आए, बट डज दैट अफेक्ट? नो। हर एक रिजेक्शन सिखा के गया, उससे सीखा, अपने आप को कन्वर्ट किया टूवर्ड्स कॉर्पोरेट, एंड टुडे आई एम हियर। और ये कोई भी कर सकता है। इट्स जस्ट योर थॉट। सिर्फ आपके दिमाग में होता है ये सब, कि आप किसी ने कुछ बोल दिया, आप चाहो तो उसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, आप चाहो तो उसको निगेटिव भी ले सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो निगेटिव और रिजेक्शन जैसा एक्चुअली कुछ होता नहीं है, सिर्फ शब्द की बात है। वो एक विंडो होती है, वो एक अपॉर्चुनिटी एरिया होता है जहां पे आपको अपने आप को काबिल बनाना है। सो दिस इज अ फाइट ऑफ योर्स, बिकम एम्प्लॉयबल टूवर्ड्स एम्प्लॉयबिलिटी। सो दिस इज आंसर ऑफ माय फर्स्ट क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? आई मिस दैट। मैं ये चाहता था कि आप हमारे स्टूडेंट्स को इस पे भी कुछ मतलब निर्देश दे कि there exists a difference between a job and a career, and career is how to set up the career goals. That is much more important as far as there is no I'll tell you, a job जो होती है, a job can be done in 3 different ways. एक फाइनेंशियल क्राइसिस, एक आपकी लाइबिलिटीज जिसकी वजह से आप जॉब कर रहे हो, और कैरियर क्या होता है? when you are doing a job which includes your passion. So ये डिफरेंस होता है एक नौकरी में और एक कैरियर में। अगर आप अपने पैशन के साथ जॉब करोगे तो आप इतना तेजी से ऊपर उठोगे जो आपने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर आप जॉब को जॉब सोच के करोगे कि 9 से 6 करनी है,
तो हो सकता है 5 साल आप एक ही जगह, एक ही कंपनी में, एक ही कुर्सी पे और एक ही सैलरी पे बैठे रहो। ये डिफरेंस होता है। ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ कैरियर, नॉट फॉर अ जॉब। बिकॉज अगर आपने कैरियर ऑप्ट किया है तो आपकी जॉब वैसे ही है, लेकिन अगर आपने जॉब ऑप्ट करी है, दैट डजंट डिफाइन योर कैरियर। उसके लिए क्या करना होगा? अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने MBA फिनेंस करा है और उसको बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट का गुरु बनना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज यू चूज? आप स्टार्टअप्स में नहीं जाओगे, आप मीडियोकर या मिड साइज में नहीं जाओगे। आपका टारगेट क्या होगा फिनेंस कंपनीज में या इन्वेस्टमेंट कंपनीज में? JP मॉर्गन, गोल्डमन सैक्स, डॉश बैंक, या अगर आप FMCG बोलते हो तो आप कहाँ जाओगे? लैंडमार्क में चले गए या आप वॉलमार्ट में चले गए। अगर आपको HR IT में जाना है तो आप कहाँ जाओगे? यू विल गो टू IBM, यू विल गो टू Oracle, you will go to Facebook. So these kind of companies we target and that define the career approach of us. लेकिन अगर हमें तो बस जॉब मिल जाए, तब तो आपको आगरा, मथुरा, बनारस में ही 15-20 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। दैट इज नॉट योर कैरियर। सबकी नीड होती है, सबको महीने में 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख सबको चाहिए, बट वो कमाने के लिए यू नीड टू वर्क, यू नीड टू पुट योर हार्ट एंड सोल आउट ऑफ फ्रॉम योर बॉडी to prove yourself that you deserve this, and that will only happen when you have a stipulated career path towards your life, not just for a sake of job. Because अगर सिर्फ जॉब पे फोकस करोगे तो आप बहुत ही restricted हो जाओगे towards exploring the market. बट लेकिन अगर आप अपने कैरियर पे फोकस करोगे, so I am 100% sure that you will be able to explore the entire market and find the best fitment for yourself. That is the answer of my second question, sir. Thank you, sir. So moving. सर एक और Yes. स्टूडेंट के साइड की बात हुई, एज बीइंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर तुम कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है and we have the courses such as MBA, MA in economics, MCom, MS psychology, social work and many things. मतलब हमारे यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं है। फिर ये बात होती है कि हमारे पास कौन सी कंपनी आएंगी और उन्हें मतलब बुलाने के लिए कैंपस इंटरव्यू के लिए क्या प्रीरेक्विजिट्स है और किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है ना कि कंपनी, जैसे आप कह रहे हैं कि हम कंपनी की हिस्ट्री देखते हैं, कंपनी की हमारी हिस्ट्री देखती है और सारी चीजें करते हैं। राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों से ये कैंपस सिलेक्शन की प्रोसेस काफी कुछ शुरू की है। ओके, तो हमें क्या देखना चाहिए, थोड़ा हमें इस पे भी अगर आप कुछ बताएंगे तो सर। तीन चीजें वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड। फर्स्ट, योर कॉलेज का सोशल प्रेजेंस कितना स्ट्रांग है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपके बच्चे होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा इवेंट कराया अपने कॉलेज में, ठीक है। कॉर्पोरेट को तो नहीं पता ना आप क्या करा रहे हो, आपके 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या यूनिवर्सिटी और स्टेट वाइज पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे, सी यू नीड टू प्रमोट योर कॉलेज। How to do it? You can socially do it, so that not today, maybe down the line continuously if you keep on doing that, एक साल बाद people start recognizing you कि हाँ यार ये कॉलेज है, ये सारी चीजें करता है। Why not give a try? First thing. Second thing, आपके बच्चों का आपके कॉलेज को प्रमोट करते हुए दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी टीम होगी 10 लोगों की, लेकिन बच्चे कितने हैं? 20,000 या फॉर एग्जाम्पल 1 लाख। अगर हर बच्चा एक पोस्ट भी करता है आपके कॉलेज के पेज पे या कहीं भी पोस्ट करता है, अपने आप को ग्रुप्स में ऐड करता है, विच विल हेल्प योर कैपेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड सोशली। एंड थर्ड एंड द फोरमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज you need to create a reputation and a value into corporate market. How to do it? You need to create a connect and a trust into not only HR, be it any member of an organization. Because जब तक मुझे भरोसा नहीं होगा कि इस कॉलेज में जाके मुझे बच्चे मिल जाएंगे, मैं उतनी दूर क्यों जाऊंगा? मैं अपने ऑफिस के 50 किलोमीटर की रेडियस में 100 कॉलेज है, मैं उनमें से कोई पकड़ लूंगा and I'll fulfill my needs. Why will I come to your place? What are the key aspects that will attract me to come to your place? वो आपको सर वो ब्रांड, वो वैल्यू आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड दैट विल ओनली हैपन बेसिस नेटवर्किंग, बेसिस कनेक्ट एंड बेसिस यूजिंग सोशल प्लेटफॉर्म। बहुत आसान है, ऑफिस में बैठ के ये तीनों चीजें की जा सकती हैं, बट यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ पीपल इन योर टीम
जो अपना टाइम को फुल्ली डेडिकेट कर दें इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग योर ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड सोशली. And the more number of connects you will be having in corporate market, your job will be very very easy in upcoming years. पहली चीज. दूसरी चीज, जब भी आप किसी कॉर्पोरेट से बात करते हैं, rather than promoting your college, you need to promote the skills of your students what they have. Because HR आपके कॉलेज के लिए नहीं आता है, HR आपके बच्चों की स्किल खरीदने के लिए आता है. कॉलेजेस क्या करते हैं? They only promote their organization, which is actually not required. आप मार्केट में कितने भी बड़े हो जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता है. हमें फर्क इससे पड़ता है कि अगर हम किसी कॉलेज में गए, हमने 2 दिन बर्बाद किए वहां पे ट्रैवल में या वहां पे रुक के, तो आर एबल टू जस्टिफाई दोस 2 days व्हेन इट कम्स टू हायरिंग. और वो हायरिंग तभी हो पाएगी जब आप अपने बच्चों को उस काबिलियत के लेवल पे ले जाएंगे. सो डोंट प्रमोट योर ब्रांड, प्रमोट स्किल्स ऑफ योर स्टूडेंट्स व्हाट दे पॉजेस. बिकॉज द मोमेंट आपके बच्चों की स्किल बिकनी जिस दिन चालू हो गई, आपका कॉलेज वैसे बिक जाएगा सर. That is the key point which I want. तो शुभम सर, इस मसले पे आपके हमारे आपको मतलब आप हमारे साथ किस तरीके का सपोर्ट कर सकते? सर देखिए, when it comes That's to very me, important for us. See, that I will not be able to answer in an open forum, to be very honest, because Okay. because when it comes to supporting and investing my time in your organization, I can do in 10,000 ways. आप लोग नहीं जानते मुझे. I think there are few people in the call who knows me very well. I think you can connect with them and they will define you how I will be able to help. And if anything possible which I can do for you, trust me, without giving a second thought, I will be able to help you. Don't worry about it. Okay. Thank you very much. Welcome, sir. Hello. Yes. Sir, there is a question. Sir, I'm Shalini Tiwari, PG diploma student, and as much I have understood till now, that there are few must-have attributes to get a job, like communication skills and skills related to main domain of the individual. Sir, I request you to please elaborate a little about behavioral and psychological attributes that an individual must develop. Hello. Am I audible? Hello. Yes, now you are. Yeah. Sorry, there was a network issue. Yeah, please tell me, Shalini. Shalini, can you repeat? Is she on call? Shalini, can you repeat your question, please? Please. Basically, sir, Mr. Shubham, she wanted to ask about the life skills or psychological and behavioral skills which are required. Because we mostly came to know that technical skills are definitely required, but life skills are even more important. So, what do you think? Can you life skills? See, there are I got it, behavior and psychological skill. So let me ask let me ask one question to each one of you. अगर मैं आज आपको एक जॉब ऑफर करता हूँ 2 सैलरीज के साथ, एक ऑप्शन है कि 25,000 की सैलरी प्लस 4 सर्टिफिकेशन, और एक ऑप्शन है 40,000 सैलरी विदाउट एनी सर्टिफिकेशन विद अ बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का. What will you opt? The moment you answer, that will brief your behavior and psychology. What matters a lot for you? A career path towards learning, or only and only your focus is on better compensation? If your focus is only on compensation, probably you will not be a fit for my organization. So these are the judging parameters when it comes to your behavior and psychology. So इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं कि आप अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हो, आप अपने शहर से कितना प्यार करते हो. इफ प्रोवाइडेड अ चांस, कैन यू वर्क इन योर ओन सिटी रेदर देन ट्रांसफरिंग योरसेल्फ टू बैंगलोर और हैदराबाद.
आप बोलोगे हाँ हाँ मैं तो अपने गांव से बहुत प्यार करता हूँ, मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगा, immediately reject, immediately reject. So these are such kind of stages when it comes to behavior and psychology wherein we judge these people कि ये कितना टिकेंगे हमारे साथ, बिकॉज इनका टिकना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ये एक रॉ मटेरियल होते हैं. ये जब कंपनी में आते हैं तो कंपनी इन्वेस्ट करती है 1 साल इनको सिखाने के लिए, और आज मार्केट की प्रॉब्लम क्या है, ये सीखते हैं और भाग जाते हैं. So that's why company has started these behavior and psychological assessment, so that they will find a person who is good, who is going to be stable in an organization. So उस तरीके के बच्चे ढूंढते हैं. So these life skills, I won't say these are life skills, but these are behavior and psychological skills which plays a very very big part when it comes to selection into campus hiring. बहुत जरूरी है. You can't be bold, you can't be rigid. So when you Shubham? review candidates, what sort of candidates are preferred? A multiple dynamic candidates or a well single focused candidate with a single mastery? देखो सर ऐसा है, हर कंपनी को मल्टीटास्किंग बच्चे चाहिए. आज की डेट में अगर आप नेल कटर भी खरीदते हो, जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग यू, तो आप चाहते हो ना कि नेल कटर आपका नाखून भी काटे, आपके घर में पेप्सी की बोतल भी खोल ले और 1-2 काम और कर ले, भले उसकी कॉस्ट 10 रुपए हो. तो सर जब आप 10 रुपए से इतनी चीजें डिमांड करते हो, तो अगर हम 40,000 सैलरी देते हैं हम डिमांड नहीं करेंगे? ये आपके क्वेश्चन से इससे अच्छा आंसर मैं आपको नहीं दे सकता. सर कुछ जो लाइक एंटरप्रेन्योर्स लाइक जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं सर, उसमें लाइक प्रेफर सर सिंगल माइंडेड पीपल, लाइक मतलब वेल फोकस्ड कम कैंडिडेट. सर जब मैंने अपना ये डिस्कशन स्टार्ट किया था, आई थिंक मैंने आंसर आपको तभी दे दिया था, मैं फिर से दे देता हूँ. नॉलेज होनी बहुत जरूरी. आप एक बात बताइए, 1 से लेके 50 तक का या 1 से लेके 20 तक का टेबल हम सबको आज भी याद है ना? लेकिन जब हम एचआर में होते तो ये टेबल कहाँ काम आता है? कहीं नहीं काम आता. हमने जो अलजेब्रा पढ़ी है, हमने जो कैलकुलस पढ़ी है, हमने जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, जो चीज हम पढ़ते हैं जरूरी नहीं वो सब काम आए. पहली चीज. दूसरी चीज, आप दुनिया में कितना भी काम कर लो, एक्सपर्टीज आपकी एक रहेगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी वाइडर होनी चाहिए. अब जैसे मैं एचआर का हूँ, मेरी एक्सपर्टीज एचआर है, आप एचआर में मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं 1 सेकंड में आंसर दे दूंगा, बट दैट डजंट मीन कि मुझे एचआर के अलावा पता नहीं मार्केट में क्या हो रहा है. So your expertise will always be same, but your leverage towards awareness of market standards are something which is highly required. जितना ज़्यादा आप मार्केट एक्सप्लोर करोगे, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी होती है आपके अपने कैरियर को एक्सपेंड करने की. आप 4 चीज़ों पे एक साथ काम नहीं कर सकते हो, एंड दैट्स अ फैक्ट. लेकिन अगर आप एक्सेल पे काम करते हो तो आपको एक्सेल भी आनी चाहिए, आपको एडवांस एक्सेल भी आनी चाहिए, आपको मैक्रोस भी आनी चाहिए. उस एक्सेल को पॉपुलेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे उसको ऑटोमेट करना है, आपको वो भी आना चाहिए. जब आपको ये चारों चीज आती है तब आप होते हो किसी स्किल के एक्सपर्ट. लेकिन अगर आपको सिर्फ 2 चीजें आती है तो सिर्फ आपको अवेयरनेस है, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि एक्सपर्ट होता क्या है. दैट्स ऑल. Thank you. So when there's a job opportunity and it's been mentioned, we are hiring freshers as well as the experienced one. Yes. Sorry. Can you repeat it again? Yes, sir. There's a job notification in that it's written freshers can also apply. So in that context, sir, the statement that you just mentioned earlier was judging the segment of a candidate, right? So in that, Okay. if a fresher is applying, what sort of qualities a HR is looking for an fresher in respect to the experienced candidate? Only one. What additional knowledge you have apart from your learning, your basic learning for applying this job? For example, अगर मुझे आज एक HR चाहिए अपनी टैलेंट टीम में, जहाँ पे मैं 0 to 2 years के लोगों को देख रहा हूँ, जहाँ पे एक 2 साल का बंदा भी अप्लाई कर सकता है जिसने रिक्रूटमेंट में काम करा है, और एक फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है. तो अगर मैं एक फ्रेशर को हायर करता हूँ एक्सपीरियंस वाले को साइडलाइन करके, तो मेरे पास हायर करने की सिर्फ 2 वजह होंगी.
पहली वजह उसकी नॉलेज बहुत ही तगड़ी होगी उस पर्टिकुलर मार्केट में, या उसने कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशन कर रखे होंगे जो इस जॉब को जस्टिफाई करते हैं. यू ऑलवेज नीड टू हैव अ प्लस पॉइंट इन टर्म्स वेन एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई. आपने कोई ऐसा लाइव प्रोजेक्ट करा हो, आपने कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस करे हो, आपके पास कुछ ऐसे मॉडरेटर्स हो जिसके अंडर में आपने काम किया है इन ये रेस्पेक्टिव फंक्शन में, अगर ऐसा है you will always get a plus point in terms of grabbing that particular job, in irrespective what industry it is going to be. Thank you, sir. Satisfied. Anyone else? Actually, sir, there are so many questions in the chat box. But let me summarize. And considering the fact that you must have started someday and you have reached this level, right? So there can be certain myths. The one PG student or who are just pursuing graduation and in final year, so they have so many myths regarding whether the companies or HRs who come for a campus placement, whether they look for your dress, your appearance, your gesture, posture, everything. So what do you suggest? Means, सर ये सब सर ये सारे मिथ हैं जी. तो ये सारे मिथ है सर, ये सारे मिथ हैं. मैं गवर्नमेंट बॉडीज के साथ काम करता हूँ. मैं इतनी आई थिंक 600-700 कॉन्क्लेव्स में जा चुका हूँ इंडिया और इंडिया के बाहर. आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ रेदर देन गेटिंग इनटू. मैं कानपुर का रहने वाला हूँ. माई फैमिली स्टेज इन कानपुर. मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, बस क्लास 12 तक मैं इंग्लिश में अपना नाम नहीं बोल पाता था, एंड दैट्स अ फैक्ट. जब मैं बीटेक करने गया हैदराबाद तो बड़ी मुश्किल हुई बिकॉज सब कुछ इंग्लिश में था एंड आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. मेरे को 2 साल लग गए समझने में कि एक्चुअली मार्केट चलती कैसे है. एंड देन बेसिस अंडरस्टैंडिंग आई स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ. जब मैं 400 बच्चों को स्टेज पे खड़े होकर बोलता था तो फियर होता था दिमाग में कि यार कैसे बोलूंगा, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मैं आंसर नहीं कर पाया तो बेइज्जती हो जाएगी. अरे बेइज्जती के बारे में सोचना ही नहीं है. बेइज्जती जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ लर्निंग होती है. आपको सोचना ही नहीं है कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, आप सिर्फ अपने बारे में सोचो. द मोमेंट यू स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन योरसेल्फ, द एंटायर सेगमेंटेशन टुवर्ड थिंकिंग विल चेंज. आज की डेट में बच्चों में सबसे ज्यादा फियर क्या होता है कि लोग क्या सोचेंगे. इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर, ओ माई गॉड मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी. दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको सब कुछ आता है. देयर इज ऑलवेज समथिंग विच आई विल ऑल्सो नॉट एबल टू आंसर एंड यू विल ऑल्सो नॉट एबल टू आंसर. एंड दैट डजंट मीन कि हम बोलना बंद कर दें, हम दिखना बंद कर दें. मार्केट आज की, आई विल गिव यू अ वेरी छोटा एग्जांपल ऑफ, देयर इज अ गाय इन द कॉल, मिस्टर दिवसेन. ही इज कनेक्टेड विद मी फ्रॉम लास्ट 5 years. जब मैं बजाज में था तो मैं इसके कॉलेज में कैंपस करने आया था. 2 कंपनी की तरफ से रेस्ट्रिक्टेड था कि उस कॉलेज में कैंपस नहीं करना था बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट मुंबई और बैंगलोर से पूरी हो जाती थी, तो हम इलाहाबाद जाते नहीं थे. लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ हैविंग गुड रिलेशन, मैं इसके कॉलेज गया कैंपस करने के लिए. 2 MBA बच्चों को लिया मैंने, और वो दोनों बच्चे इंग्लिश में बात नहीं कर पाते थे. मैंने उनको बोला कि तुम 2 महीने की इंटर्नशिप पे आओ, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हो. वो दोनों बच्चे इंटर्नशिप पे आए पुणे में बजाज हाउस में. उन्होंने 2 महीने काम करा. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी दोनों बच्चों ने कि जब उनका सिलेक्शन हुआ 8 लाख का पैकेज ऑफर हुआ दोनों बच्चों को. एंड दे आर स्टिल वर्किंग विद बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस इन पुणे एंड दे आर वेरी हैप्पी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी की क्या डिमांड है, और एज एन इंडिविजुअल HR व्हाट यू वांट. डू यू हैव अ कैपेबिलिटी टू इम्प्रोवाइज एंड इम्प्रूव योरसेल्फ? दैट मैटर्स अ लॉट. दैट मैटर्स अ लॉट. आप क्या, मैं आज भी कितनी से कितनी बड़ी मीटिंग हो, एक टी-शर्ट और पैंट पहन के जाता हूँ, जीन्स पहन के जाता हूँ, स्पोर्ट्स शू पहन के. योर अपीयरेंस विल नॉट रिफ्लेक्ट योर नॉलेज. योर नॉलेज विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म योर रिफ्लेक्शन. आपकी नॉलेज मैटर करती है, आपका पहनावा मैटर नहीं करता है. और जो आपको पहनावे से जज करते हैं, आई थिंक दे आर नॉट द राइट पर्सन टू जज यू. ऑलवेज रिमेंबर दिस. Thank you, sir. I hope Yes. there is one more thing I could get. See, we all are teachers, and we try to make our students learn so many things. We say so many things so many times, but
there is something which make them casual all the time. So I'm very sure that out of these 268 attendees, that 269, I'm not. I don't think all are that serious. And initially, what you said, that how many of you have actually utilized the period, means almost 50 days we have spent in lockdown. So definitely you have talked about in the management field, but yes, there are students in pursuing different programs from different faculties. I'm very sure that they are not that serious, and they have not. Sir, Even right now they are not very serious. So how can make them serious? सर मैं एक बहुत ही छोटी सी चीज बताता हूँ आपको जी। आप जितने भी हाथ पैर मार लो, या मैं जितने भी हाथ पैर मार लो, या मेरे जैसे जितने भी एचआर हैं जितने भी हाथ पैर मार लें, आप वो सीरियसनेस कभी क्रिएट कर ही नहीं पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। बिकॉज सर सीरियसनेस पता है कब आती है? सीरियसनेस तब आती है जब आपको बर्गर खाना हो और आपकी जेब में 30 रुपए ना हो। जिस दिन आपको वो रियलाइजेशन हो गया ना सर, दुनिया की सारी सीरियसनेस ना 1 घंटे में आ जाएगी और अगले दिन से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। तो जब तक आप खुद से रियलाइज नहीं करोगे ना, इनको कोई नहीं सिखा सकता। इनका बुरा वक्त इन्हें काबिल बनाएगा और उसी पे छोड़ दीजिए। आप एडवाइस कर सकते हो, आप एक करियर पाथ इनको दिखा सकते हो, वो बेशक दिखाइए, बिकॉज वो आपका भी काम है और वो मेरा भी काम है। जी जी। तो हम वही कर सकते हैं सर, और हम वही कर रहे हैं। इससे ज्यादा ना आप सर कुछ कर सकते हो, ना हम कुछ कर सकते हैं। एक बच्चे को जिंदगी में क्या चाहिए, ये सिर्फ एक बच्चा डिसाइड कर सकता है। ना आप डिसाइड कर पाओगे सर, ना मैं डिसाइड कर पाऊंगा। डेफिनेटली। एक मिथ जो है शुभम जी, जो हम लोग बार बार ये कहते रहते हैं, लेकिन हमारा कहना एज टीचर होता है, एज अ वेरी सक्सेसफुल एचआर ऑफ द कंपनी, एक मैसेज चाहिए स्टूडेंट को कि जो डिफरेंट डिसिप्लिन जो इंजीनियरिंग के नहीं है, मेडिकल के नहीं है, मैनेजमेंट के नहीं, उनका भी कैरियर कॉर्पोरेट और प्राइवेट में बहुत अच्छा है या नहीं है, ये मैसेज आप सर बिल्कुल अच्छा है हम लोग को आसानी हो जाए। सर अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। सर स्टूडेंट को एड्रेस करके कह दीजिए, शायद उससे हम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी फिर अगली बार उनसे एड्रेस करने और बच्चों बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं व्हेन इट कम्स टू करियर ग्रोथ, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। अभी इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्फ टुवर्ड्स वोकल टू लोकल। आप लोगों ने मोदी जी का सुना ही होगा 2-3 दिन पहले जो उन्होंने बोला, एंड कंपनीज आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्फ। सो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में बहुत ज्यादा स्कोप आएगा, एंड दिस विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज वेरी क्विकली। कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कैरियर नहीं है, जिसमें ग्रोथ नहीं है। हर डिपार्टमेंट, हर सेक्शन, हर फंक्शन में ग्रोथ अनलिमिटेड है। आप कहां तक पहुंचना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप एक मैनेजर बन के अपना कैरियर खत्म कर दोगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आप बोलो नहीं जी इस फंक्शन में ग्रोथ थी नहीं, ऐसा नहीं है। उसी फंक्शन में CHRO भी हैं, उसी फंक्शन में मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उसी फंक्शन में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अगर ग्रोथ नहीं होती तो वो भी नहीं होते, लेकिन वो है, दैट मीन्स ग्रोथ है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ फास्ट, हाउ लॉन्ग वी वांट टू रन। 100 मीटर दौड़ना है 100 मीटर दौड़ो, 200 मीटर दौड़ना है 200 मीटर दौड़ो, और 10 किलोमीटर दौड़ना है 10 किलोमीटर दौड़ो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फैक्ट्रीज, आप फंक्शन, आप एरियाज को नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, बिकॉज जब आप बोलोगे ना ग्रोथ नहीं है तो मैं पूछूंगा आप ये कैसे डिफाइन कर सकते हो ग्रोथ नहीं है, और आपके पास आंसर नहीं होगा वो देने के लिए। सो ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। आप उस फंक्शन में कितना ग्रो करना चाहते हो वो मैटर करता है, उस पे काम करो, दैट इज रिक्वायर्ड। शुभम जी। यस शुभम, हाँ शुभम जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एज HR, क्या कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशंस भी आई कि जो कैंडिडेट्स आए वो ज़्यादा क्वालिफाइड और ज़्यादा कैपेबल थे और आपको उन्हें इस वजह से भी छोड़ना पड़ा? देखिए सर, ऑनेस्टली मेरे पास अभी तक तो नहीं आई हैं, बट हाँ ऐसी होती हैं। और अगर HR कोई भी ऐसे बच्चों को छोड़ता है तो इसलिए नहीं छोड़ता है कि वो ओवर क्वालिफाइड है,
वो इसलिए छोड़ता है कि कंपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं व्हेन इट कम्स टू हायरिंग। अगर आज मुझे कंपनी से बोला जाए कि मुझे 4 लाख ही देना है, तो कोई बच्चा अगर ये बोलता है कि नहीं सर हम इतने काबिल हैं, हमको तो 6 लाख से कम नहीं चाहिए, तो हम उसको हायर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ड्रॉप रेशियो ऐसा होता है तो वो सिर्फ उसकी वजह से होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक जॉब डिमांड करती है एक स्पेसिफिक स्किल। अगर आपको वो आता है और आपको उसके अलावा 4 चीजें और आती हैं, तो आप उस जॉब के लिए फिट नहीं हो। रीजन बीइंग क्यों फिट नहीं हो, बिकॉज जब मोमेंट आप कंपनी के अंदर आओगे और जब आप अपनी स्किल्स को मैच करोगे कि हाँ मैं जावा डेवलपर हूँ, मेरे को 4 लाख मिल रहा है, लेकिन सामने डेटा एनालिस्ट वाला बंदा है उसको तो 6 लाख मिल रहा है, तो मैं जावा क्यों करूँ, मैं डेटा एनालिस्ट में जाऊंगा। तो वो एक एचआर के लिए एक लॉस होता है उसकी पर्टिकुलर एंटिटी का। तो जब एचआर हायर करता है तो वो उस चीज को ध्यान में रखता है कि क्या हायर करना है, कितना स्टेबल बंदा हायर करना है। कोई भी ऐसा एक्सेप्शन केस होता है, एचआर के पास अथॉरिटी नहीं होती है उसको हायर करने की। थैंक यू सो मच। एंड कनेक्ट विद दिस गाय, क्या नाम है इस लड़के का, अभिलाष। इसके पास कुछ बहुत ही अच्छे एल्गोरिथम काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जो कंपनीज में काफी इफेक्टिव हैं। मैंने एक दो देखे हुए हैं which was very quite good, and he is working on some assessments also. So be in touch with him. I think he will be able to help you guys in a very, very better and effective way when it comes to corporate awareness. Okay, I think I am done. I am having a call at 4:50. So thank you so much for having me. बहुत ही अच्छा लगा सर आप सारे लोगों से बात करके। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटी होगी, आई विल डेफिनेटली कम टू योर प्रीमाइसेस and we'll provide some hand support in terms of campus hiring for your kids. I'll do that. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. We will expect from that, sir. Thank you. Yeah, definitely. If provided chance, definitely I'll do it. So nice to hear you, Shubham. Thank you so much, and thank you thank you to all of the students who have listened to me. Please focus जहाँ पे required हो. Stay at home. Stay safe. God bless you all. Take care. We hope that you will. Sure. हमारे वीसी साहब भी सुन रहे थे पूरी बात को, तो ये अच्छा है कि आपने उनके सामने ये सारी चीजें कही। क्वाइट इजियर उनके लिए भी होगा और बहुत मेरे ख्याल से आज हेल्पफुल होगा आपका ये। Thank you, sir. Indeed a pleasure, and thank you, Vishi sir, for having me. All regards to him. Take care. Bye. Bye. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sir, I have a question. Yes. Sir, it's been asked frequently, especially to the freshers. What is your expectations from the company? Sir, like the standard answers will be as per standards, but they constantly they pressure us to get the specific result. Like they wanted to hear the quotation, and being a fresher we can't quote the amount, and if we do, the chances of rejection get higher. So what will be the suitable answer for a freshers? अभिलाष जी है ना हमारे साथ? अभिलाष जी है, वो बता देंगे। अभिलाष जी ही आंसर देंगे इसका। Another expert. Yes, sir. Am I audible? Yes, of course. So may I repeat the question? सुन लिया है। जी सर, मैंने सुन लिया है। Am I audible, sir? Yes, sure. Yes, sir. The reason that जैसे शुभम सर ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि the reason is that you need to do a research. Okay, so when you are going for a particular company for the hiring, so you need to do a bit research कि जो कंपनीज ने अभी तक हायरिंग करी है या जो भी वो पैकेज देते हैं ना, तो दे ऑलरेडी मेंशन दिस इज द पैकेज दे आर ऑफरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। आप कभी भी किसी कंपनी में जाओगे तो देयर इज अ जॉब डिटेल बीइंग मेंशन देयर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज वो कंपनी की एक लिमिट होती है जो वो ऑलरेडी मेंशन करते हैं, तो जब वो मेंशन ऑलरेडी होता है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको 6 लाख ईयर का पैकेज मिलेगा या 4 लाख ईयर का पैकेज मिलेगा, तो सम ऑफ द अदर दे हैव पुट अ बाउंडेशन कि हाँ अब आपको जो आंसर देना है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। तो एक्सपेक्टेशन जैसे सर ने बोला 2 ही हो सकती है, या आप उस कंपनी से जुड़ के कंसिडरेशन में गेन करना चाहते हैं कि नॉलेज में गेन करना चाहते हैं, तो आपका आंसर होगा इन्हीं 2 में से एक होगा।
yes, I want to be a part of this organization only because this is the opportunity to learn more, because this organization is working for the last 20 years, 30 years, and there is lot more opportunity to learn. तो ये आपका एग्जैक्ट एक आंसर हो सकता है अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग विद द फाइनेंस कि हाँ दिस मच अमाउंट शुड आई गेट और दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज. द ओनली मोटिव इज टू आस्क कि व्हाट इज योर थॉट, नॉट टू नो कि व्हाट यू आर डिमांड कि हाउ मच मनी यू वांट. द मोटिव बिहाइंड द क्वेश्चन इज दिस ओनली. आई थिंक आई एम क्लियर. Yes, sir. Okay. Any other questions, sir? So I think it was really my pleasure to be a part of this webinar, where I think Shubham sir must have brought down all those current facts, and the myths have been cleared now. See what the actual demand of the organization is, and where the market is going on. See what students should do, and what is the temperament of an HR when it comes to hiring. So I think these things are clear, and I think many of the questions are being asked, and it all have been answered well. So hope this session would bring a big change in the attitude of the students towards their career. And that's all. So Abhilash ji, thank you very much that you were the instrumental of this wonderful chat. हम तो चाहेंगे कि आप जरा इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहिए और हमारे थोड़े कैंपस प्लेसमेंट को भी आगे बढ़ाइए. That was one thing which we need from you, Abhilash ji. Definitely, sir. The motive behind this webinar was very clear, that we have to bring down the HR to the organization. So we do not have any doubt regarding this. So we'll definitely make this thing sure that this happens. Once everything is open and the lockdown is over, we'll make this thing happen. It's my responsibility, and there's a lot the Bansidhar sir is supporting us to the ultimate extent, where he is providing us the platform and the guidance. So we are working on it. Definitely down the line, we have lined up few more webinars with the HRs of the organization. There are a few more HRs, and as soon as we get the confirmation from them, we'll line up more webinars. Right. Thank you, sir. So, sir, Bansidhar, thank you so much, sir. Thank you, sir. Bansidhar sir, thank you. माइक ऑफ किया. मुझे लग रहा है कि बंशीधर सर हम लोगों को सुन नहीं पा रहे हैं. नहीं एकदम सर सुन रहे हैं, म्यूट था. और जी. अब मैं ऑनरेबल वीसी सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर कि इस टाइम पे सर आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी गाइडेंस, और सर इस प्रोग्राम से कितना आपको सेटिस्फेक्शन है और क्या सर आगे एक्सपेक्टेशन है, ये चीजें, क्योंकि आज सर करीब 300 से ज्यादा स्टूडेंट हम लोगों के साथ एक टाइम पे ऐड थे और अभी भी बहुत. तो आपकी गाइडेंस और आपकी सर इस समय ब्लेसिंग दोनों चीजें पहुंच. सर का म्यूट है ऑडियो. बात नहीं अभी तो असल में सर डालना है राहुल जी सर से रिक्वेस्ट, सर बीसी सर हैं हम लोगों के बीच में, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के प्रोग्राम पे आपके कमेंट्स और आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी गाइडेंस के लिए हम लोगों को चाहिए.
क्योंकि मेरे ख्याल से शुभम जी की स्पीच बहुत ही मोटिवेटिंग थी और मेरे ख्याल से काफ़ी एक अलार्मिंग भी थी स्टूडेंट के लिए भी और हम लोगों के लिए भी कि किस तरह हम लोगों को तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट वीक में कोई और एचआर होंगे सर, लेकिन तब तक आपकी गाइडेंस और आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी ग्रेडिंग हम लोगों के लिए सर तीनों चीज़ें आज बहुत जरूरी है। तो बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक स्पीच के लिए और बच्चों के लिए भी सर आज एक मोटिवेटर की तरह बोलने के लिए। हमें बोलना है? जी सर। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। एक तो मैं जो शुभम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना ज़्यादा समय दिया और आज का जो सेशन था काफ़ी इंटरेक्टिव रहा। बड़े सवाल हमारे शिक्षकों ने भी पूछा, बहुत सारे सवाल बच्चों ने भी पूछा कैरियर के बारे में। और एक बड़ा अच्छा लगा मुझे कि सवाल एक सज्जन ने कहा कि जॉब और कैरियर में क्या डिफरेंस होता है, तो आंसर तो बड़ा अच्छा उन्होंने दिया क्योंकि वो उनकी विधा है, उसके पारंगत हैं वो लोग। लेकिन मुझे लगता है कि यदि लेमैन लैंग्वेज में जॉब और कैरियर को अलग किया जाए और उसमें कोई तुलना की जाए या अंतर स्पष्ट किया जाए, तो जॉब जो होता है वो केवल पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उसमें कि कोई फ्यूचर के लिए फ्यूल नहीं होता। और कैरियर जो होता है उसमें पैसे का महत्व नहीं होता है, लेकिन आदमी को फ्यूचर का फ्यूल जब उसमें मिलता रहता है तो वो ग्रो करता रहता है। तो ग्रोथ जॉब में कम होती है, कैरियर में ज़्यादा होती है, और इसको पैसे से तुलना किसी भी विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब ओवरऑल देखेंगे तो जो कैरियर के पाथ पे आगे बढ़ते हैं, टोटल क्युमुलेटिव जब आप मॉनिटरिंग गेन देखेंगे, दैट विल बी मच हायर देन द व्हाट यू थिंक इन दिस टुडे, कि हमको ज़्यादा पैसा जो पैकेज मिल रहा है वहाँ जाना चाहिए, भले वहाँ कैरियर ग्रोथ हो या ना हो। तो ये जॉब का। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, मुझे लगता है कि इंटरव्यू में एटीट्यूड एंड अप्रोच, ये दो चीज़ें होती है जिसका बहुत ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर रमन पंत जी ने कहा था कि हाउ यू सेलेक्ट एंड हाउ यू रिजेक्ट। तो मुझे लगता है कि हम लोग तो त्रिपाठी जी की तरह बहुत सारा इंटरव्यू नहीं लेते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो लेने का अनुभव है 15-20 सालों से मुझे भी। तो उस अनुभव के आधार पे मैं बताना चाहता हूँ कि वी ऑलवेज थिंक दैट हाउ ए पर्सन कैन अप्रोच ए प्रॉब्लम, वेदर ही इज राइट और रॉन्ग एट द अल्टीमेटली दैट इज इट मटेरियल, बट द अप्रोच, whether he took a better initiative, what kind of the initiative he is taking. So that will be the important. So students should also think about this, that your approach should be very, very appropriate and very, very honest about any problem as far as the solution is concerned, because there is not one solution for a one problem. There are multiple solutions and multiple approach is possible. I think a different approach, you may think a different approach, and maybe we can compare the different approach and one can get a right solution that which approach is the appropriate, which can save time and money. Today, this society is the data-driven, you can say, or information-driven decision is much, much important than anything else. But our students have this lack of the information, I can say. Hardly you know about this any company background and their career path, what they are doing, how they have started. अभी मुझे पता नहीं हमारे कितने विद्यार्थियों ने इन्फोसिस का उदाहरण हमारे माननीय जो स्पीकर महोदय थे उन्होंने दिया। भाई इन्फोसिस की हिस्ट्री आपने पढ़े है, हाउ इट हैज बीन स्टार्टेड, व्हाट वाज द इनिशियल टाइम दे हैव द रॉक पैचेज, हाउ दे कम आउट, हाउ दे एक्सपैंड, सो ऑल दिस स्टोरी यू मस्ट नो। जैसे आप किसी व्यक्ति की जीवनी पढ़ के आपको कोई ना कोई ऐसा भाव मिलता है कि उसके जीवन से क्या सीखना चाहिए, उसी तरह से किसी भी कंपनी का ग्रोथ जो हो आज आप देख रहे हैं, उसके पीछे
कैसे कैसे वो आगे बढ़े हैं उस बात को भी देखना चाहिए, उस पगडंडी को भी देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आज उसके सीईओ को कितनी सैलरी मिलती है, कितना उसको सुविधा मिलती है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया। तो स्क्रैच के बारे में जाते जानिए, साइनिंग तो आ ही जाएगी, यदि स्क्रैच में दम है तो धीरे धीरे वो साइन भी करने लगेगा। तो विद्यार्थियों को ये चाहिए कि पूरा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, जिस भी कंपनी के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी संस्था के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में पढ़िए। और ये एक दिन में काम संभव नहीं है कि आज आपको एक इंटरव्यू आया, कल दूसरा आया और एक एक दिन में आप पुस्तकें पढ़ लेंगे। हर कंपनी के बारे में एक एक सक्सेस स्टोरी है, उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उससे हमें कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। किन भावनाओं के साथ उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि कंपनी स्टार्ट करता है तो उसके मालिक के मन में पैसा कमाने की इच्छा होती है कि बहुत पैसे कमाऊंगा। इस भाव से किसी ने कंपनी नहीं स्टार्ट किया। आप रतन टाटा की कंपनी के बारे में टाटा की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इन्फोसिस की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, HDFC बैंक की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। बहुत सारे पुस्तकें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिन्होंने लिखा। कोई इस भाव से कभी कोई कंपनी को स्टार्ट नहीं करता कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लूंगा, हवाई जहाज खरीदूंगा, ऐसा भाव नहीं होता। एक दूसरे भाव से स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों को भी चाहिए कि पढ़िए, इंटरव्यू के समय वही भाव लेकर के जाइए कि आपको सेवा करना है, आपको सीखना है और आपको उसके साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ना है। और उस कंपनी के पार्ट एंड पार्सल होकर जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक आप न खुद ग्रोथ कर पाएंगे न कोई कंपनी ग्रोथ कर पाएगी। तो मैं विद्यार्थियों से ये आग्रह करता हूं कि आप सुभम जी के बताए हुए चीज़ों पर ध्यान दीजिए और उसके ऊपर मनन करिए और कम से कम ये समय जो है इसका उपयोग करिए पढ़ने के बारे में, जानने के बारे में कि विभिन्न कंपनियों की क्या स्थिति है। जिस भी क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो, जिस भी तरह की कंपनी में आप जाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके बारे में जानना सुनना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये सारा मिथ टूट गया है लोगों का कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ व्यक्ति ही शिखर पे पहुंच सकता है। ये मिथ भी विश्वव्यापी सब लोग जानते हैं कि ये मिथ समाप्त हो चुका है कि सारे सीईओ MIT से होंगे, इंडिया के सारे सीईओ IIT और IIM से होंगे। ये मिथ भी समाप्त हो चुका है। इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। उन लोगों के गूगल के बारे में पढ़ना चाहिए, याहू के बारे में पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सीख सकते हैं और वो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगी। आपके नेतृत्व और जो आपका जो चरित्र है उसके निर्माण में काफ़ी सहयोग मिलेगा। ये हमारे विद्यार्थियों को सीखना चाहिए और ये यदि आपके पास रहेगा, ये बलवान रहेगा तो निश्चित तौर पे किसी भी आप इंटरव्यू में जाएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंपनी सेलेक्ट करने आती है, कंपनी के भी रिजेक्ट करने नहीं आती। वो तो सकारात्मक भाव से आए हैं, लेकिन उसी भाव से आपको भी उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा और अपने अंदर जो आपका हुनर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर ही हमेशा खेलने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी इंटरव्यू में आपकी जो वीकनेस है उसके तरफ इंगित नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे रहिए और उसी में चाहिए कोशिश करिए कि इंटरव्यू को आसपास आप खींच करके ले जाए। क्योंकि यदि आप और नहीं जो जानते हैं उसमें बड़ा स्पष्ट भी रहना चाहिए। यदि आपको जो चीज़ें नहीं आती है बड़ी ऑनेस्टली बताना चाहिए कि हम नहीं, अभी जानकारी मुझे है इसके बारे में, क्योंकि नहीं तो आप गलत प्रयास करेंगे और आप जो है एक के बदले दो इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि हमें ये भी नहीं आता है और ये भी नहीं आता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम जैसे लोग जो कि HR से बहुत ताल्लुक नहीं रखते, हमें उतनी जानकारी नहीं है। मैं विद्यार्थी भी मैनेजमेंट का नहीं रहा हूँ, न ऐसे विषय का रहा हूँ जहाँ बहुत सारी शब्दों का खेल और बोलने की विधा सिखाई जाती है। हम तो लैब में हाथ से काम करने वाले लोग हैं और उसी में आनंदित रहते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ रमन पंत जी को, बंशीधर पांडे जी को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और
जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, उनके साथ उनके सहयोगी हैं, उन दोनों लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे विद्यार्थियों को इतना अच्छा इतनी अच्छी बात बताई और उन्हें प्रेरित किया, उन्हें जागृत किया कि समय है, उसका उपयोग करिए और अपने करियर में आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। राहुल सर, आपका टर्न। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग आपसे हमेशा मोटिवेट होते रहते हैं और मैं अब रमन पंत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन आप करें। और धन्यवाद बीडी सर का भी कि वो इस अपॉर्चुनिटी को बनाने की कोशिश में लगातार हम लोगों के साथ में लगे हुए हैं। बाकी जितने भी साथ में सहयोगी लोग हैं, बिना उनके ये काम होना असंभव था। अभिलाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस को करने में, मतलब उन्हीं की वजह से ये बेसिकली हो पाया है। और बाकी हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसमें उत्सुकता दिखाई, और मुझे लगता है कि जो अब शुभम जी ने 2-3 चीज़ें कही हैं उन पे हम लोगों को आगे चलना चाहिए। एक तो उन्होंने यही कहा है कि आप लोग आज सुबह कुछ लोग एक आध सवाल पूछ रहे थे तो उसके जवाब उनको मिल गए होंगे कि इफ़ यू हैव अ सर्टिफिकेशन देन यू कैन बीट विद एनी HR, एनी MBA, एनी MBA को आप बीट कर सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। So there are always opportunities that we can enhance upon and और मैं आपको बताऊं कि कल भी हमारे साथ में एक जोनल मैनेजर साहब आएंगे, वो भी जो ये पोस्ट कोविड सिनेरियो है उसके ऊपर अपनी बातों को रखेंगे। So I would like that all the students that are today will also come tomorrow to learn and to, in fact ऐसा होता है जब हम पढ़ते हैं तब तो हम पढ़ते तो उतना है नहीं, लेकिन सुनने में हमको बहुत सारी बातें बोलने के लिए मिल जाती हैं, इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। ओवर टू बंशीधर पांडे सर। थैंक यू सो मच सभी को, स्पेशली शुभम जी को, अभिलाष जी को और उनकी पूरी टीम को जो हमारे साथ थी, और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब को कि हमें प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए और ये सारी चीज़ें के लिए। बाकी हमारे पूरी टीम में राहुल जी, दुर्गेश जी, आयुष और बाकी सारे जो हमारे टीम मेंबर होते हैं, पिता जी, और स्पेशल थैंक्स टू कुंदन भाई कि आप लगातार एक तरह से हम लोगों के लिए चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। और फिर उम्मीद है कि कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें और भी कुछ नई चीज़ें निकल और शुभम जी कह के गए हैं कि वो हम लोगों को कैंपस प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे और जरूर कंपनी के साथ टाई अप करवाएंगे, इसी उम्मीद के साथ। और इस उम्मीद के साथ कि हम लोग भाई एंड तक कोई ना कोई इंटरव्यू जरूर करवा लेंगे। आज के लिए किसी परमिशन ऑफ वीपी सर विदा लेते हैं और कल फिर शाम को 4 बजे का टाइम है। आप सभी जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारी चीज़ें, ये रील बनाए रखनी है हमको हर हाल में, कि हारना नहीं है। जैसे जीतेगा इंडिया वैसे ही जीतेगा विद्यापीठ, और हम लोग अपने 100 ईयर सेलिब्रेशन में है और 1000 का लक्ष्य रख के चल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन। फिर मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी को आज के लिए। नमस्कार 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 सर। प्रणाम सर। जी नमस्कार।